members will will tell you more about that, how to analyze data to produce stories. Because in digital age, and we are exposed to various kinds of data. For example, just few days back we have data on National Crime Records Bureau, and you can surf through various kinds of stories, how the crime against women are going up or down, how the crime against uh, scheduled castes and scheduled tribes are going up and down, uh, what kind of crime is is going up and what kind of crime is going down, how police is functioning, what is the conviction rate. All kinds of stories you can fetch from NCRB, National Crime Records Bureau data. We are living in COVID times. Various kinds of data available on COVID, and we can produce, a number of great stories. Then, and there's a very good platform for data journalism in India. That is India Spend. If indiaspend.com, if you can surf that, and they are pioneer in data journalism. So these are the new challenges for a 21st century journalist to learn SEO, to make her his own graphics, to be on video, to to have limited skills of posting on websites. It's very easy to learn to how to create blogs, for example. And the next step is that how, besides your wonderful faculty and professors are teaching you, but how to learn your skills and how to be in hand with lots of information which is going on. I would recommend that few things all of you should do is all of you should have very active social media accounts, and you follow relevant people there, like uh, public figures, media organizations, some research organizations, some fake news busters. They are already there. Lots of media monitoring websites, like we have News Laundry, we have other websites also, which does media monitoring. And you should follow these websites on your Twitter handle or on Facebook or wherever you are, in LinkedIn or wherever you are. Then the second step is that you have to read a lot. See, whichever times we are living, books are still relevant. There is no shortcut of reading. So if you can read lots of PDF, you can read lots of books also, and don't stop reading. If you want to write wonderful stories, don't stop reading. You can go through various blogs also. Now we are a little bit away from Corona, and physical gatherings are also started taking place. I expect that all journalists should also go to various events also. There are seminars happening in whichever city you are living in. There are many events which are taking place, book releases are taking place, events are taking place. You should go there as a listener. You ask questions with panelists, and that's how you train yourself to become a journalist, and to create a network also. Go and take their visiting cards, take their phone numbers, follow them on social media. They can also follow you back. So, and uh, then follow uh, lots of government resources, because government resources give you credible data. For example, Ministry of Rural Affairs, for example, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs. These platforms gives you uh, a relevant information, credible information, and the credible data also. Don't believe in WhatsApp forwards which you get it, because WhatsApp forwards
or any news on social media without a credible URL is not trustworthy. So 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 be there on relevant platforms. Now coming to few of the business models. So business model in this 21st century media is very diverse and very challenging also. And unfortunately we have few laws in India which can deal with media business, and that is one reason that the quality of finance which is coming to media is corrupting media a lot. So then we have a different kind of other challenges also. One challenge I can figure out is monopolizing of media in few hands. Uh, for example, in our paper, in our country, you see one newspaper is getting published in many cities. We have Times of India edition of Bombay, we have Times of India Delhi, we have Times of India Pune, we have Times of India Lucknow, and several other Bangalore and several other places. Same thing, same holds good for Indian Express, so same holds goes for Hindu, same applies to Dainik Jagran and other newspapers, Amar Ujala, Bhaskar. There are multiple 40, 50, they are being published in 40, 50 cities altogether. In US, this is not example. This is not possible. In US, Washington Post is being published from Washington Post. It cannot be published from New York. New York Times is being published in New York. It cannot be published from Boston or any other city in America. So this we as a future journalist and you as a future journalist have to deal with that, what kind of laws we have in this country. The other very user friendly and the journalists who are coming to profession now, they have a very diverse business model which is digitally controlled advertising system. For example, if you open a YouTube channel, and there are many journalists, I can name a few uh, who are doing wonderful job uh, as YouTubers. Recently, I was traveling in Uttar Pradesh, and I have seen in almost every city of Uttar Pradesh there are 4 5 very influential YouTubers. They have millions and millions of followers. The one video goes to 1.5 or 2.5 million viewers. So they are also a new lot, and they are earning money also. So being a YouTuber, you can earn money. Being you can open your own website through WordPress, and through you can make your own website through WordPress and other platforms. And those websites can also be linked with Google. And depending on your Google searches and your hits, click per minute, so you can earn lots of money also, at least to survive your small media house. You can do that. Coming to the mobile is the future platform for journalism, and mobile apps are becoming more and more popular. My generation is still go with browser, but I know the future generation is not going to use browser a lot on mobile phones. The future generation will use and is still using. The new generation is still using mobile apps, which consumes less data, and it gives you more customized and more AI based, artificial intelligence based user interface. There are 3 4 kinds of mobile apps in news segment are available. One, mobile apps are by the traditional media houses. All these big media houses like ABP News, NDTV, BBC, CNN.
Times of India, they all have their apps as well. So the one kind of apps are there which are from the established media houses. Then there are second kind of apps which are purely digital platform applications, like Quint has come, like Wire has come. These are new media houses which does not own traditional media houses, traditional media platforms like broadcast channels and newspapers. They are digital age media houses, and they have their applications also. Then there are third kind of applications available. Apps or news apps are available, which are called aggregators. These aggregators are, what they do is they crawl from news sources and then they segregate. I explained to you what is crawling and segregation. This is how the Google works. It crawls certain news topics, certain keywords, like flood in Assam, like pollution in Delhi. So, so it picks up those keywords and then it segregates with your main menu. If you can see regional, economy, sports. So it crawls and it segregates and it gives you on your mobile phone. This is how the Google works. This is how the other news aggregators work. News aggregators are not a media platform. They are pulling media stories from other media houses and giving you in one place. So instead of having, they give you advantage of, instead of having installing 5 different apps, you can have one aggregator which gives you the news from 5 or 10 or dozen more uh, media resources. Like we have InShots, for example. We have News Hunt. These are very popular uh, aggregators in India. In abroad, there's a news aggregator called Smart News. So this is Smart News and InShots. They they give you news resources from other media houses and offer that in your on your mobile phones. So this is how the aggregator works. Now there is a scope for a third dimension of this entire news media universe, that is going to the hyper local or micro level. So if I'm living, for example, in a small city of UP, or I'm living in Pune, I'm living in Chennai, I'm living in Madurai, I also want national news, and I also want to see what is happening in my city. And if you are in a different city other than Delhi and other than metropolitan, you can have hyper local news platform as well. And those news platforms are becoming very, very popular, and they are the future, I would say, the news platforms. So in short, this is this is this is all the media industry today looks like. And it is, the mobile journalism is growing. The one thing, which will dominate or is still dominating, is the video instead of written words. So video making is, all of you have to acquire those skills of video making, as I was telling you before us also. And these video making, video blogs or video uh, platforms are becoming more and more popular, and they are giving you revenues also. Now I can uh, deal with your questions. So one question which I received is on views on tabloid journalism.
tabloid journalism, started from England, and there were two very popular news platforms were there: The Sun and the News of the World. News of the World closed down after a scandal of phone tapping few years back. The Sun is still there, and these tabloids, they follow celebrities, and they bring news from personal life and personal movements of celebrities. Now, in age of social media, for example, uh, those these tabloid journalism is getting lesser popular, because people get lots of such similar stuff from Instagram, for example. The other aspect of tabloid journalism was the sensationalism. They used to have bigger, bold headlines, and they used to trivialize the news and sensationalize the news. The general ethics of professional news gathering was, of course, a casualty in tabloid journalism, and we also call it yellow journalism at times. And now we are facing the bigger threat of from tabloid journalism, bigger threat than the tabloid journalism, that is fake news industry. And fake news industry is very well greased and organized industry. It is pumping uh, a huge amount of fake news and propaganda driven news through social media, and it is our responsibility as a future journalist also to deal with that and train ourselves to 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 bust those fake news. The second question is, do you think that one can go into HR department also in a company after pursuing this course? Yes, of course. HR, though HR is a different kind of skill set, and but journalism teaches you something, which is useful for, even if you become engineer, for example. Forget about HR. So because as Professor Ritika was defining journalism in today's world, see, in 16th century, when printing press came in Germany and the first books got published, it revolutionized, it has given an entirely new dimension to the business of writing and writers, because the books can be manufactured and mass produced, and from there lots of revolutions and social change started happening. Now through Facebook and through Twitter, through LinkedIn, through Instagram, through blogs, through WordPress, through websites, every individual has a printing press on your pocket through your mobile. So HR, of course, is a no journalism is such a thing that you need everywhere. Journalism is just not all about reporting crime and politics and foreign policy. There are food bloggers. They are also journalists. They're people who are giving lots of information on travel bloggers. They are also journalists. Uh, Someone asked me, Rohit, uh, about crawl and segregate function in brief. Okay. See, the Google is a search engine, and it's a very complicated algorithm. That algorithm calls as a spider. They call it a spider. This spider uh, algorithm is very intelligent, and it has certain principles of putting your searches on the top. So suppose you write something, and if you are not placed by Google in first second pages, then your stuff is not going to be viewed by many people. So it's an art how to how to optimize your search engine so that Google recognizes your article or your news item, and
it gives on the top searches. For example, I'm searching pollution in Delhi, and you have written a story on pollution in Delhi. If your search optimization is not good, I may not be getting the story on my first page. And all of you use Google. The story or any item which does not come on the front page, you hardly go to second or third or fourth page. You just pick first three, four articles and you read that. So this spider algorithm, the one basic function of the spider is that it crawls from available resources. There are millions and millions of resources available throughout the world in the internet. So it crawls on certain keywords. Like, you give your story a certain keywords, pollution, Delhi, then pollution happens during Diwali crackers also. So you put Diwali crackers, pollution happens through burning of paddy. So you just give those keywords also. So if any air quality index, so if I'm searching for any, suppose I search air quality index in Delhi, and if you have put air quality index in your keyword as one of your key phases in your story and your search engine optimization, then I would get your story. So this is how the Google crawls through certain keywords, and then it segregates. Segregates means that it puts in certain order. Like if you see any website and you see uh, there there is a national news, economy, sports, and other fields, and this is how it segregates. That it puts that news item into economy, into politics, into foreign policy, into sports, into cookery or whatever, IPL, for example. So this is how it segregates that, with certain topics, and it crawls on the basis of keywords. One uh, question I've received is on advertising sector. Advertising sector is very huge. It supports the news media, and it corrupts the news media as well. It is two-edged sword. So it sponsors the news media, and it corrupts the news media as well. Some 20 years ago, newspapers were very expensive, and then the price war started, and newspapers were heavily subsidized. And why it is got subsidized? Because newspapers got over dependent on advertising, and then those advertising houses or corporates started dictating their contents also. It's a huge industry, advertising, and after doing this course, you can also learn few skills of advertising. Now there is a algorithm-based advertising also, which is I would say that little bit of fairness is there, because nobody is sitting there, sitting at the back and deciding which content, which advertisement will go. It happens through artificial intelligence. It happens through a program, through an algorithm, and the new kind of advertising in digital sector is through through number of clicks you get. Suppose you see if you see a video on a YouTube, so you see first 15-20 seconds there are some advertising plays out. Then there's a button comes skip ad. So this is how the Google advertises on YouTube, and a certain portion goes to the content creator also.
So advertising sector is also a very flourishing career, and through this media course, of course, you can join as advertising sector as well. I want to I want to know to speak in public without hesitation. That's all is a practice. No, you have said you have given answer in your question also without hesitation. You have to leave hesitation, and if you and don't think that you are making mistakes or you are uh, not good with very in a very articulate way. Everybody is not a good speaker. Everybody is not uh, a good orator, but anybody can speak before a microphone. So to leave that hesitation and start with a smaller group, like have 4 5 students, form a debating club in your college, and start speaking there in a smaller group, and then you start addressing big gatherings also, which are things required to make a good journalist and editor. That's what I'm speaking for all these few minutes. uh, See, one has to be hands-on with the facts, and one has to be uh, on the right side of journalistic ethics also. In one of the programs I was attending, that was on media awards, and I was head of a jury. And one a very senior journalist was speaking there, and he said that there is not very good synergy what is being taught in schools, media schools, and what is being practiced in newsrooms. Every year we get new students as budding journalists in our newsrooms. And the moment a boy or girl enters into a newsroom, it finds a different kind of environment, which is not uh, taught, maybe not be taught in media schools. So I intervened in that and said, "Ki, see, media schools are teaching students in certain ideal to making them ideal journalists. Newsrooms are not very ideal places. It works under the dynamics are different. There are pressures. There are pressures of deadline. There are some different kind of pressures also works there. But what we need is ethical journalists with a sharp mind. So this is all quality of a good journalist and a good editor. There is a definition which goes on, which and was popular in my generation also. The journalist is a jack in all arts and master of writing. So you have to be very good on your expression and written words, as well as with facts and figures. Uh, what are various things which can what are the various things that we can do in journalism, like this course line is which line is better and more scope. See, don't go with your the demand in market. Go what your instinct tell you. See, there is a scope for everything. Suppose you want travel, you love traveling. There are, I know, travel bloggers are also having good career. If you are a photographer and you believe you want to tell your stories through photographs, there is a scope for that. If you want
you have certain inclination towards climate change, there is, of course, there is a vast field of journalism uh, on climate change. There are platforms and there are, a universe for that. And there is a definite good career also. If you want to pursue, for example, a relevant, relatively new area, that is policy journalism, which, in previous times, one has to practice after 10 years or 20 years of experience. Now I see lots of new people are coming and they are writing on policies. There are many think tanks which invite younger generation uh, on policy issues. So so there is, a vast area of is available. Anything, if you want to do a fashion, pursue fashion as a journalist, you can also have a very strong uh, career opportunities available for fashion journalism also. And in whatever field, so go with your instinct, acquire skills. See, we are living in age of having a niche journalist rather than journalist. Journalist means GENR, journalist. So, so don't become jack in all arts. Try to become a very, working in a specific area. So now there is, much bigger scope for in niche area. For example, if you are practicing in climate change, suppose you are practicing in human rights, suppose you are practicing in on gender issues, there are, a scope for even for those journalists who are writing on gender issues. What are three books that you will recommend every college student to read? Okay. One book I would recommend to brush up your Hindi and to understand politics of India. That is Rag Darbari by Srila Shukla. Uh, that will give you a very, good idea about the kind of Hindi we should write as a journalist and the kind of society and politics we have. Other book I would recommend that, we should read Constitution of India and the commentary on Constitution India time and again. It should be the permanent companion for all of us. Sir, could you repeat the name of the book Constitution? Constitution of India is Constitution of India, just Constitution of India. No, you said something about after that too. It was Rag Darbari, beta. We'll tell it to you after Ha, this. Rag Darbari by Srila Shukla. Just Google Rag Darbari, it will come. It's in Hindi, it's a novel. And there are other books which are available uh, on media, specific media skills, which your library would have. Uh, One book which I am reading these days is how 10 different ways the democracy can be challenged. So it is written by Washington Post journalist, and you should read that. And we should also read uh, lots of history books also. For example, we should read Discovery of India by Jawaharlal Nehru. One book which I would recommend is uh, I know that many of you are not from the rural background, and we have a little bit of lesser idea of rural life and the issues. We have this big farmer
agitation which is going on and is there in the news. So to understand the basics of issues of farmers, so you should read P. Sainath. There's an old book by P. Sainath. Everybody loves a good drought. So there are few books which I can recommend more, but these are enough. If you start with that. Sure, sir. I would Sir, can you completely. So, repeat the friends, book last? I think good questions were coming from the participants, and good input has also gone, and this process is continued. We take the opportunity to welcome our next speaker, Mr. Dilnawaz Pasha, the journalist at BBC New Delhi. So, Mr. Dilnawaz, most welcome to you in this session. Thank you so And, much, sir, for inviting me, and thank you, Just Prashant, wait sir. for a few minutes. Let Mr. Prashant to conclude finally. He has taken Ah. almost all questions which students have asked through the chat window, and then after we'll start it. ओके ये एक सवाल आया है मुझसे कि दिव्या, Yes, sir. कैन यू प्लीज शेयर द योर एक्सपीरियंस इन द फील्ड, इन दिस फील्ड? See, I'm here for more than 30 years, so it's not possible for me to share all your experiences, but there are times when you are faced in a very peculiar situation as a journalist. And I tell you one incident, you may not be even born by then. Uh, there was a Malpa Hill tragedy. So around 200 people died in that the movement of earthquake and the movement of hills. There was a landslide, big landslide, and the entire contingent of Amarnath Mansarovar Yatris got crushed in that tragedy. So I went there. That was a small island, just adjacent to Kali River in hills of Uttarakhand. I landed there by in helicopter, and the army people told me that they can carry only one person. So I alone went there with the camera. Those days, it was a big camera, and helicopter could not land on that terrain. So I had to jump from at least from 8 feet to that area, to that, the island. And when I jumped there and I did my work, I could spot 70, 80 bodies there. Protima Bedi died in that, and her body I found under a big boulder, and I took her wallet and I could find her passport, and that's how I came to know that Protima Bedi is died. The pilot told me that I'll give you 1 hour and then I'll come back. But within after 1 hour, that was 12 o'clock, around 12 o'clock in the afternoon. And then weather got unfriendly, and I was alone in that island with 70, 80 bodies scattered, and the weather was bad. It was cold, and I was alone there, and helicopter could not come. And there was no mobile phone those days. So I stuck there. When weather got cleared after 5, 6 hours, around 5 o'clock, the helicopter came and picked me up from there. So these kinds of situations are also there, where you need a very tough mind. Psychologically you have to be very, very tough to handle that, because I can't do anything. I was alone. I was thinking that if helicopter don't come, then what I will do, I will climb the hill, I will go wherever. I could see a village many, many kilometers away from that. So anyway,
So very, these are very, very challenging job. very, Journalism very is challenging. not easy, but very challenging. Huge creativity is required. I think the last question is there, where from Mr. Dilnawaz can start, because his topic is impartial journalism. Yeah. That I'll why just take one more question and then I will hand the over last question to. is one student has asked that why few channels or few journalists keep on giving us the fake news. Are they paid for that, or they want to get better positioned in terms of marketing or etc.? Why they keep on giving that fake news? I think this is the last question. Then after we'll start. See, this is all I expect the future generation to deal with that. And we have, I began that we are into very, very challenging times of journalism. And this fake news or propaganda is a global phenomena. And it's a social media driven phenomena. And as a journalist, we have to deal with that. Why it is coming now is because of the corruption in the business model. I give you one example. That New York Times is not subsidized by advertisers anymore. It is now subsidized by readers of New York Times. And that is how New York Times could fight with Trump. But our media houses are not able to, because there is a strong nexus with the power and with the corporates, and with the corporates supporting and financing the media houses. So we have to, as a journalist, we have to break this. And digital medium is providing lots of scope to break this nexus, to break this conflict of interest. Because and when I travel across the Uttar Pradesh and other places, I see lots of young boys and girls through digital medium are doing wonderful job in smaller towns also. Thank you so much, sir. Thank you all of you for It has been giving a lovely me session, patient and hearing. And I'm sure every Saturday is our activity day. We have just started it today. So on subsequent Saturdays, we'll keep on inviting you. And the students who are very curious to ask all these questions will keep benefited with your experience. Thank you so much, sir. thank you. So, dear friends, we have our next speaker, Mr. Dilnawaz Pasha, the journalist with BBC New Delhi. BBC is such a name that do not need any introduction, and for him also, introduction is that's all. That journalist, BBC New Delhi, and his topic is impartial journalism. I know students are ready with many questions, and that's how I have requested Mr. Dilnawaz also to take up questions more and keep it more interactive. And what Mr. Prashant was talking is very important, that somehow or other, when media houses are becoming biased, where journalists are becoming biased, at least the responsibility lies on we all individual citizens, to deny, to reject that kind of journalism which is pushing some X kind of messages to us, and that when people will stand up, probably that will force such media houses also to rethink that how we have to change our policy, and if with this policy we continue, what will be the business model in coming days. So thank you so much, sir. And with this, we welcome Mr. Dilnawaz here for our another talk. थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी. मैं चाहूँगा अपनी बात में हिंदी में रखूँ, Oh, sure. क्योंकि मैं हिंदी में ज़्यादा बेहतर बोल पाता हूँ. मेरा नाम दिलनवाज है और मैं दिल्ली में बीबीसी के साथ काम करता हूँ. और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि प्रशांत टंडन जी के बगल में मैं दिखाई दे रहा हूँ. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. प्रशांत जी का जर्नलिज्म पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं और उनकी कहानियों ने कई माइलस्टोन स्थापित किए हैं. उम्मीद है जो बच्चे इस क्लास में हैं वो उनको पार करने की, उनसे आगे जाने की कोशिश करें. और हमेशा हमारा चैलेंज यही होना चाहिए कि हम स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस करें, जो हो चुका है उससे बेहतर करने की कोशिश करें.
एक सवाल बच्ची ने पूछा था प्रशांत जी से कि सर आज के दौर के पत्रकार जो हैं फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं और क्या वो किसी प्रभाव में हैं या कुछ हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बस मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहूँगा। हो सकता है उनकी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ना हुई हो या उनको ये एहसास ना हो कि वो जो कर रहे हैं उसका आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर या क्या नकारात्मक असर पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी पत्रकार जिसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जो अपने काम की संवेदनशीलता को समझता है और जो ये जानता है मैं क्या कर रहा हूँ और इसका समाज में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो फेक न्यूज़ नहीं फैलाएगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये संभव, मतलब मुझे मुझे लगता है कि जो पत्रकार हमको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, ये जो पत्रकार फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, उनकी ट्रेनिंग में कमी है, उनकी समझ में कमी है या उनमें जिम्मेदारी के एहसास की कमी है। अब मैं आज की अपनी क्लास पे आऊँगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। मैं हुदा साहब से समझना चाहूँगा इसका क्या फॉर्मेट रखना है। फॉर्मेट है कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इम्पार्शियल जर्नलिज्म पे पहले आप सेंसिटाइज करें कि हमें क्यों इम्पार्शियल जर्नलिज्म करनी चाहिए, मुझे एज ए जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, जी और जो सिटीजन्स आवाम हमें देखती है, जो हमारी ऑडियंस हमें हमारे लिए इंतजार करती है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और जी इस प्रोसेस में क्या किन चैलेंजेस से हमें गुजरना पड़ता है, क्या कठिनाइयां हमें आती हैं, और फिर बच्चे फ्री होंगे उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपके साथ। तो सबसे पहले तो इम्पार्शियलिटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी इससे हम क्या समझते हैं। मैं चाहूँगा हमारे ऑडियंसेस में से कोई इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करे, चैट में लिखे, और हुदा साहब उसको आप स्क्रीन पे लें। कोई भी जो इम्पार्शियलिटी क्या होती है, क्या आप उससे समझते हैं, कोई भी एक या दो लोग जो है हमें रोशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या समझते हैं उससे। Anybody can raise your hand and Huda sir will get you on the screen. Any student can unmute and speak. What do you mean by impartiality? Sir, can I? To without any not biased If you want, you can without switch on your any camera. discrimination बगैर Okay. किसी not भेदभाव doing a के biased decision. Not reading Not a script. Okay. Sir, by studying So all the somehow facts and figures regarding the topic to be discussed upon and then forming an unbiased opinion by studying the part on both the sides and not like preferring one side and neglecting the other one. Okay. so basically it is an open-minded and unfavoring discussion. Mhm. sir, Good answer, sir. impartiality Sir, means can I ask? Oh, yeah, so please. If you want, you both can the switch on your student camera. get Anybody equal can chance do it. to represent themselves. सर अकॉर्डिंग टू मी इम्पार्शियल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ए का ओपिनियन सुना या सिर्फ बी का ओपिनियन सुना और दोनों का ओपिनियन सुन के मैंने सिर्फ ए को जज कर दिया कि ए सही है और बी गलत है। लेकिन इम्पार्शियल का मतलब मेरे लिए ये भी है कि मतलब दोनों के ओपिनियन सुनो और दोनों को मतलब सुझाव भी दो उनके हिसाब से। सर ये मेरे को लगता है। Okay. Okay. Can So I? now I ask a question. Adding on you, आप सबने बहुत सही आप दिशा में जा रहे थे। मैं एक सवाल और पूछता हूँ इससे थोड़ा सा आगे डिस्कशन को ऐड ऑन करने के लिए। कैन इम्पार्शियलिटी बी अचीव्ड बाय बैलेंस? आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड बैलेंस। sir, it can be. It can be. Okay. Anybody else? Any thoughts? Yes, sir, it can be. It can be achieved. Okay. You guys can go on. You can write in chat. I will read it out, or you can just speak. I repeat the question. Can impartiality be achieved by balance? So, like, can you explain the question in short? I didn't get. The question is on your screen now, if you can see. Can impartiality be achieved by balance? This is the question.
क्या संतुलन से आप अपनी रिपोर्ट को निष्पक्ष कर सकते हैं? Yes, sir. चलिए आप सब अपने जवाब नोट कर लीजिएगा। इस क्लास के बाद थोड़ी सी आपकी राय में बदलाव आएगा। मैं अगली स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है जो स्क्रीन पे है? सर Yes, sir. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब इन शब्दों को पढ़ें सारे, और इनमें से जो आपको लगता है इम्पार्शियलिटी के लिए दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, या जिनके ज़रिए आप जो हैं एक रिपोर्ट में इम्पार्शियलिटी रिफ्लेक्ट कर सकें, वो दो लिखें, फिर हम बात करेंगे। Can anybody This in chat window. Yeah, you can write it in the chat window as well, and you can write on your notepads as well. मतलब आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक स्टोरी करने जा रहे हैं, इनमें से कौन सी दो चीजें हैं जिनका आप सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे? Huda sir, can you designate anyone so that they can read Dr. Ritika, read Yes, I am there. yeah just okay. coordinate the answers which Sure, students sir. have. Yeah, with the name and Sure, sir. Sure. yeah, so that we can know what we think, मतलब हम लोग क्या सोच रहे हैं, कोई भी एक Dr. Ritika will coordinate. जी सर। आप बस जिसका आप पढ़ें रेस्पॉन्स, उसका नाम प्लीज ले दीजिएगा, so that we know who is. बिल्कुल बिल्कुल जी, तो सवाल में दिव्या says not prejudicing someone. हाँ मयंक कहते हैं truth and incorporating with different views. या कशिश कहते हैं fairness, truth and not being emotional. यस मानव not being emotional. हृदय सोनी truth and neutrality. Not being emotional, truth and fairness. पारस बोल रहे हैं. लक्ष्य to understand the story from both the perspective. Himanshi not being emotional. Ansh transparency and not being emotional. Jasleen giving impression of telling the whole story. Aman truth and accuracy. Strict to the rules and transparency. एक्सक्यूज मी मैम सर अगर मैं खुद ऐड करूं तो मैं ये कहूंगी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो एक पत्रकार को वो दोनों पहलू दिखाने चाहिए। जी एक्सक्यूज मी मैम यस you please speak. मैम आई एम नॉट एबल टू व्यू द वीडियो स्लाइड सॉरी। बच्चे आई विल रिक्वेस्ट आप अपना कनेक्शन चेक करो एंड दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करो। स्लाइड्स बिल्कुल विजिबल हैं, तो आप चाहे दोबारा लॉग इन कर लो। श्योर मैम श्योर। तो आप में से कोई इनमें से किसी भी बिंदु पे बात करना चाहेगा? यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा हुआ कोई भी ऐसा शब्द है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करूं? Sir, may I? या श्योर, गो अहेड। Sir, rigor. Sir, rigor. रिगर, Yes, sir. हाँ, इसमें है चैलेंजिंग ऑल साइड्स विद इक्वल रिगर। बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, और सारे बिंदुओं में एक ऐसा बिंदु है जिस पर किसी ने गौर भी नहीं किया था। और मेरी नज़र में अगर इनमें से पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पे आप जो भी कुछ देख रहे हैं, इम्पार्शियलिटी में सब कुछ आता है। तो आई जस्ट सेड चूज व्हाट टू सूट्स फॉर यू, सो दैट आप अपने नज़रिए से उसको देख पाएँ। हम सबका नज़रिया अलग अलग होता है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप अगर लें और वो इम्पार्शियलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें फिट ना बैठे, या उस डेफिनेशन के करीब ना हो। तो हम सब किस स्तर से चीज़ों को देखते हैं, हमारा नज़रिया क्या है, ये उसका रिफ्लेक्शन था। हर किसी के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। सवाल उन्होंने कहा चैलेंजिंग ऑल साइड्स विद इक्वल रिगर, अगर मैं भी चुनता तो मैं भी यही चुनता। इसका मतलब है, जैसे मैम ने कहा, रितिका जी ने, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें दोनों पहलुओं से की जांच पड़ताल में उनका जो वर्जन है उसको चुनौती देने में एक समान रिगर, उतनी ही मेहनत करनी है, उसी गंभीरता के साथ उन्हें क्वेश्चन करना है।
एक उदाहरण दे के मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक स्टोरी आई थी गाजियाबाद में बुजुर्ग की दाढ़ी काटे जाने को लेकर के, और उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझसे जय श्री राम के नारे लगवाए और मेरी दाढ़ी काट दी और अ, मुझ पे हमला किया गया। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। मीडिया के अलग अलग वर्गों ने इस खबर को अपनी तरीके से पेश करने की कोशिश की। 90% ऑफ द मीडिया ने जो बुजुर्ग की बात है जैसा वो कह रहे थे, उनके बयान को बिना चैलेंज किए वैसे ही दिखाया। हमारा एक पत्रकार के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि किसी भी घटना के अगर दो पक्ष हैं तो हम उन दोनों पक्षों से वो सवाल पूछें जो वो जायज़ सवाल हैं, भले ही प्रथम दृष्टया या हकीकत में कोई उस घटना का विक्टिम नजर आ रहा हो, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है पूरा सच लोगों के सामने लाने की। इस घटना का जो सच था, जो कई सवाल, जैसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं भी उन बुजुर्ग से मिला था और उन्होंने मुझे भी गलत जानकारी दी और मुझे पता था ये गलत जानकारियां दे रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको वहां पे चैलेंज करूं। लोगों को खराब लग सकता है कि मैं एक हिंसा के पीड़ित बुजुर्ग से सवाल कर रहा हूं, उनको अनीज करने की कोशिश कर रहा हूं या उनसे मुश्किल सवाल कर रहा हूं। मुझे भी ऐसा खराब लग सकता है कि मेरे सामने एक 70-75 साल का बुजुर्ग है जो अपनी एक बात कहना चाह रहा है और मैं उसकी बात पे शक करके रोक के उससे सवाल कर रहा हूं। लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी है सच को, जो पूरा सच है, उसको लोगों के सामने लाने। तो वहां पे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सवाल को वहां दर्ज कराऊं। जिस रिगर के साथ मैं पुलिस से सवाल कर रहा हूं, व्यवस्था से सवाल कर रहा हूं, उसी रिगर के साथ, उसी गंभीरता के साथ मैं उनसे भी सवाल करूं, ताकि मेरी रिपोर्ट के जरिए कोई झूठ या कोई ऐसी बात जो नहीं हुई है या कोई ऐसा तथ्य है जो लोगों के जहन को, उनकी सोच को, उनके विचारों को गलत तरीके से प्रभावित करता है, चला जाए। तो एक पत्रकार के तौर पे यू हैव टू चैलेंज एवरी साइड विद इक्वल रिगर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सवाल पूछा गया। मैं सोच रहा था कोई इस बारे में सवाल करे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उस यस सर, थैंक यू सो मच। उस स्टोरी में बुजुर्ग ने जो गलत, मतलब एक गलत तथ्य बताया था, उन्होंने कहा कि मैं जिन्होंने मुझ पे हमला करा उनको नहीं जानता। अब अगर आप वायलेंस की स्टोरी कर रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पर अकेले जा रहा है, उस पर किसी ने अटैक किया, वो अटैकर को नहीं जानता, अटैकर उसे नहीं जानता, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी रिलीजियस पहचान के को लेकर के मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ और इस वजह से मुझ पे हिंदू ने या मुसलमान ने हमला किया। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के एक नाजुक पक्ष को दिखा रहा है कि एक मुसलमान पर उसकी पहचान को लेकर हमला हो रहा है या एक हिंदू पर उसकी पहचान को लेकर हमला हो रहा है। लेकिन यहीं पर कोई मुसलमान बुजुर्ग और उसको कोई हिंदू युवक हमला हमला कर रहा है उस पर, और उन दोनों के बीच में पहली पहचान है, कोई उनके बीच में विवाद है किसी बात को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के, अड़ोस पड़ोस के संबंध को लेकर, गाड़ी टकराने को लेकर के, और वहां पे अगर ये खबर इस तरीके से आती है कि मुसलमान पहचान को लेकर के हमला हुआ, तो ये गलत तरीके से खबर को पेश करना हुआ। ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या वो बुजुर्ग या क्या वो पीड़ित उस अटैकर को, हमलावर को पहले से जानता है या नहीं। और बुजुर्ग ने अपने बयान में, जो उन्होंने मीडिया को बयान दिया, उन्होंने यही कहा था कि वो उनको पहले से नहीं जानते हैं, जबकि इसकी जांच में ये तथ्य आया था कि वो उनके बीच में पहले से जान पहचान थी। तो मैं उनकी स्टोरी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ सही गलत किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट के नजरिए से आपको बता रहा हूँ कि आपको हर पक्ष से बराबर गंभीरता से सवाल पूछने, ताकि आप पूरे सच को जो सामने लाने की जिम्मेदारी उसको निभा सकें। अब और कोई कुछ इसमें से समझना चाहे, किसी को कुछ और समझ में ना आ रहा हो, उम्मीद है आप समझे होंगे इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होना क्या है। यस सर। यस सर। किसी का कोई और यस सवाल, सर। कुछ और इस स्क्रीन पे से देख के जो कोई लाइन आपकी समझ में ना आ रही हो, जिस पे आप एक्सप्लेनेशन या इलेबोरेशन, ये स्क्रीन जो है यही पूरी क्लास है, इसके अलावा इस क्लास में कुछ नहीं। यही एक स्लाइड है, बस आपको देखनी है, देखते रहिए इसको।
यहाँ लिखा कोई भी शब्द या पक्ष या फ्रेज किसी की समझ में ना आ रहा हो, या सर आप उस पर कोई एक्सपेरिमेंट? जी सर रोहिताश्वा यार या सर what is factual rigor सर फैक्चुअल रिगर, यस। आप जब जर्नलिस्ट काम करते हैं, देखिए पत्रकारों का काम क्या होता है, हम नॉर्मली हम क्या रिपोर्ट करते हैं, जो हो रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फैक्चुअल रिगर का मतलब है कि हमारी रिपोर्ट में जो भी फैक्ट है उसको तलाशने में हमने हर संभव प्रयास किया हो, उसमें कहीं कसर कोई कमी ना रह जाए, जो तथ्य हैं, तथ्यों की तलाश। अब जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको फैक्चुअल रिगर, और वो किस लिए बहुत जरूरी है। कासगंज में अल्ताफ की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में। पुलिस ने बयान दिया कि हम उसको पूछताछ के लिए लाए थे, वो वॉशरूम गया, वहां जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये पुलिस का बयान है। एक पत्रकार के तौर पे आप खबर कर रहे हैं, आप सीधे बयान भी छाप सकते हैं उसको सही मानते हुए, या जो उसके तथ्य हैं उनको और निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? जो पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है, इसके एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब एसपी का बयान है कि सुबह के समय अल्ताफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसे टॉयलेट जाना था, वो टॉयलेट गया, वहां उसने अपनी जो हुड जैकेट पहन रखी थी उसके हुडी के नारे से लटक के, मतलब कस के, और जो वहां पे 2 फीट ऊंची टंकी है, 2-2.5 फीट, उससे खींच के अपने आप को आत्महत्या कर ली। और उनको जब वहां उनको पुलिस ने देखा, उनकी हल्की सांस चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। अब जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपको ये बयान दे रहा है, इसका सेकंड साइड क्या हो सकता है? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या हो सकता है? और अगर मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे तथ्य ला सकता हूं जो उनके बयान पर सवाल खड़े कर सकें, भले ही उनको झूठा साबित ना कर पाए? तो फैक्चुअल रिगर में फिर आप ये करेंगे, तथ्यों तक जाने की कोशिश करेंगे, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एस्टेब्लिश करना है इसमें, अल्ताफ को पुलिस ने कब और किन परिस्थितियों में पकड़ा, हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए बुलाया या उठा के लाए। ये सब अलग अलग चीजें हैं। इंस्पेक्टर ने उसे फोन करके बुलाया, वो थाने पुलिस चौकी आया, बिल्कुल अलग चीज है। पुलिस घर पे गई, घर से उसको उठाया लेके आए, ये अलग चीज है। उसको पुलिस चौकी में रखा, ये अलग चीज है। हवालात में रखा, ये अलग चीज है। टॉयलेट में रखा, अलग चीज है। तो सबसे पहले आप इसमें टाइम एस्टेब्लिश करेंगे। एसपी आपको बता रहा है कि हम उसको सुबह को लाए। उसका बाप मीडिया को दिए बयान में कह रहा है कि वो तो 24 घंटे पहले, कल एक दिन पहले उठा के ले गए थे उसको, और मैं चौकी गया, मुझे भगा दिया। ये पब्लिकली अवेलेबल चीजें हैं। इससे ज्यादा ना मैं जानता हूँ इस स्टोरी के बारे में, ना आप जानते हैं। अब आपको स्टोरी हाथ में मिली है, तो आप फैक्चुअल रिगर क्या करेंगे? आप सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ को पुलिस ने किन परिस्थितियों में, कहां से पकड़ा, वो कितनी देर पुलिस हिरासत में था, क्या उसकी हिरासत को जनरल डायरी में जो पुलिस की होती है दर्ज किया गया था, अगर 24 घंटे से ज्यादा हुए उसको पुलिस हिरासत में, तो क्या उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, अगर नहीं किया गया तो क्यों? एसपी साहब कह रहे हैं सुबह लाए थे, कुछ देर बाद वो शौचालय गया, उसने वहां सुसाइड कर लिया। अगर आप ये एस्टेब्लिश कर देते कि वो सुबह नहीं लाए थे, 24 घंटे पहले लाए थे, आपने एसपी के बयान का पहला तथ्य गलत साबित कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा ये बयान दिया कि वो शौचालय गया और वहां उसकी बॉडी लटके हुए मिली, उसने जो है फंदा लगा दिया था हुडी में। अब मिली, ये एसपी बयान दे रहा है मिली। आपको सवाल करना है किसे मिली, किसने उसको सबसे पहले देखा? क्या किसी पुलिसकर्मी ने? क्या वहां कोई थर्ड पर्सन मौजूद था बाहर का जो उसको देख रहा था? क्या दरवाजा बहुत देर तक नहीं खुला, कोई शौचालय गया, उसने नॉक किया?
दरवाजा पुलिस को तोड़ना पड़ा, अंदर से बंद था या अपने आप खुल गया? ये ऐसे सवाल हैं। फिर आप इनके जवाब तलाशेंगे तो आप उनके दूसरे तथ्य पे सवाल उठाएंगे। पता चला उन्होंने बताया कि हमारा मुंशी ने या हमारे फला सिपाही ने उसको देखा। वो सिपाही वहां मौजूद था या नहीं था, वो ड्यूटी पे उस समय था या नहीं था, किसी गवाह ने, कोई बाहर का थर्ड पर्सन है, नॉट पुलिस बट मेंबर ऑफ पब्लिक, कि भाई हम एक को फला पूछताछ के लिए उठा के लाए थे या कोई शिकायत लेके आया था, वो शौचालय गया, उसने देखा, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने फैक्ट दिया कि उसकी सांस चल रही थी और उसको अस्पताल ले जाया गया। क्या उसकी सांस वाकई में चल रही थी? वो वाकई में जिंदा था? आप ऐसा वीडियो तस्वीर हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं जो घटना के तुरंत बाद का हो। आमतौर पर जब भी किसी की डेड बॉडी मिलती है तो जो लोग उस तक सबसे पहले पहुंचते हैं वो वीडियो शूट करते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पब्लिक हो या मेंबर ऑफ पुलिस हो। अगर किसी की लाश मिली है तो किसी ना किसी ने वीडियो शूट किया होगा। आप उस तक पहुंचने के लिए मेहनत कर सकते हैं, दैट इज फैक्चुअल रिगार्ड, उस मोमेंट के किसी सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लाने की। इसके बाद उनके इस छोटे से वाक्य का अगला शब्द यह है कि अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। आप उस डॉक्टर से पूछें, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर उसकी मौत हवालात में होती है, डेट विल बी रजिस्टर्ड एज अ डेथ इन जुडिशियल कस्टडी, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, उसमें सब नपेंगे पुलिस अधिकारी। और अगर उसकी मौत रिकॉर्ड्स में हॉस्पिटल में दर्ज होती है तो सब जांच से बच जाएंगे, बड़ा हो हल्ला होगा, लोग शोर मचाएंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं होगा। तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या आपने उसको देखा? जब अस्पताल में लाया गया, कितने बजे लाया गया, सबकी फाइल होती है, नोटिंग होती है, खासकर क्रिमिनल केस की। वो कहेगा जी हमारे यहाँ 9:30 बजे लाए थे। ओके, कौन लेके आया था? पुलिस वाले। क्या नाम थे उनके? जिस समय मरीज आपके सामने आया उसकी क्या हालत थी? वो कहेगा नहीं नहीं साहब, वो तो मरा हुआ हम लेके आए थे, वो तो हमारे पास जब आया मरा हुआ था। तो ये एक डिफरेंस हो गया, डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड और ब्रॉड डेड। आपने फैक्चुअल रिगर करके एसपी के ने जो बयान दिया, जो उसने कवर अप करने की कोशिश की एक जुडिशियल डेथ, वो आपने फैक्चुअल रिगर के जरिए उसको एक्सपोज कर, दैट इज फैक्चुअल रिगर। हर तथ्य जो आपके सामने आ रहा है और हर तथ्य जो आपकी रिपोर्ट में जा रहा है, आप उसको वेरीफाई करने के लिए जो मेहनत करते हैं, दैट इज फैक्चुअल रिगर। एनीथिंग एल्स? समझ में आया? Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes. और इस स्क्रीन पे किसी का कोई सवाल इन शब्दों को? नो सर। हेलो हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सर, incorporating different views means what topic they want to cover in journalism? You are saying incorporating different views. Yes sir. देखिए, आप कोई भी स्टोरी कर रहे हैं, उसमें आप अलग अलग नजरिए पेश करने की कोशिश करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो है स्टोरी कर रहे हैं किसान आंदोलन, तो उसमें किसान क्या सोचते हैं, सरकार क्या सोचती है, आम लोग क्या सोचते हैं, जो मंडी में बैठे हुए जिन पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो लोग क्या सोचते हैं, और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि इससे कॉरपोरेट को फायदा होगा, सरकार को कॉरपोरेट को दे देगी, तो कॉरपोरेट क्या सोचता है। एक घटना से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, जितने भी नजरिए हैं, सबको अपनी स्टोरी में शामिल कर, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट व्यूज। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक पक्ष लिया और उसको जाने दिया। एक पत्रकार के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी रिपोर्ट में हर नजरिए को, हर पक्ष को जगह देंगे। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड इफ एनीबॉडी वांट्स एनी एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग। सर, इसी पे खुशी से का एक सवाल है। हाँ हाँ, ज्यादा मुश्किल है सच्चाई ढूंढना, कौन गलत है सारे तथ्यों में से ये ढूंढना, या किस पे विश्वास करें और उसको अपनी रिपोर्ट में शामिल करें, ये ढूंढना। अगर आप एक क्लियर माइंड से जा रहे हैं, इसकी पहली लाइन है डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टोरी, कहानी से अपने आप को अलग कर लेना। कहानी से हमारा मेरा कोई संबंध नहीं है।
मेरा काम है, एक कहानी है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप, जो आपके प्रेजुडिसेस हैं किसी भी चीज को लेकर के, उनको मैं अपने डोर पे, अपने घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी जो सोच है, मेरा जो नजरिया है, मैं जो सोचता हूँ, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा मेहनत करके सच तक भी पहुंच जाएंगे। आप इक्वल रिगर से सबको जो है क्वेश्चन भी कर लेंगे, और आप फैक्ट भी निकाल लेंगे। सबसे मुश्किल जो है आज के दौर में, उस सच को कहना। सच पता करने से ज्यादा मुश्किल है उस सच को कहने की हिम्मत रखना। अगर आप में से कोई भी, जितने भी लोग, मुझे नहीं मालूम कितने लोग हमारे साथ इस क्लास में हैं, आप में से कोई भी अगर ये तय करेगा कि मुझे अच्छा जर्नलिज्म करना है, तो निश्चित तौर पे वो कर पाएगा। अल्टीमेटली इट इज द यू हु इज टेकिंग द डिसीजन। अगर आप कहें कि मुझे सच पता करना है, तो हो सकता है 2 दिन की जगह आपको 10 दिन लग जाए, लेकिन आप सच तक पहुंच जाएंगे, और आप बिल्कुल पूरे कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट ट्रुथ, होल स्टोरी तक पहुंचना चाहें। हो सकता है बहुत गहराई की स्टोरी है, तो हो सकता है महीने भर में, 6 महीने में काम कर लें, और बहुत से पत्रकार तो एक एक स्टोरी पे एक एक साल भी लगाते हैं। तो सच तक, या सच की सतह तक तो आप पहुंच जाएंगे। और अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपका माइंड क्लियर है, आप में कोई प्रेजुडिस नहीं है, और आप अपने ओपिनियन को अलग रखते हैं, यानी जो आपका काम है उस तक आप अपने नज़रिए, अपनी सोच, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने विचार, अपने समाज, अपनी नैतिकता, इसको नहीं ले जाने देते हैं, तो आपको प्लेयर ट्रुथ दिख जाएगा, और आप फिर किसी को भी जो है फर्क भी नहीं करेंगे, तो वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। लास्ट में आपने कहा भरोसा करना। हम भरोसा करें ना करें, ये तो इंस्टिंक्ट आप में डेवलप होगा कि किस पे मैं भरोसा करूं, किस पे ना करूं। और जितना ज़्यादा आप काम करते जाएंगे, जितना रिगर आप लाते रहेंगे, उतना ही आपका ये जो इंस्टिंक्ट है ये डेवलप होता जाएगा। लेकिन आपको ये जो इस पे वर्ड क्लाउड है, इसकी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, आप सवाल करेंगे, और आप किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करेंगे, तो सवाल आपके जहन में अपने आप आएगा। आपको बस ये समझना है कि हर कहानी के 2 पक्ष होते हैं, और उनमें से किसी को भी आपको सही मान के नहीं चलना है। तब आप जो है निष्पक्ष, बिल्कुल कंप्लीट स्टोरी कह पाएंगे। और किसी का कोई सब, मेरी बात समझ में आई या कुछ सवाल रह गया है? Yes, sir. So ये वाला point leave my prejudice at the door. मुझे दरअसल, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे सवाल नहीं दिख रहे, मुझे मेरी स्क्रीन ही दिख रही है। मैं Second सर, point. आपने क्योंकि स्लाइड शेयर कर रखी है, तो इसलिए आपको वो चैट विंडो के क्वेश्चन शायद रिफ्रेश नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है Dr. Ritika will coordinate with you for questions. Otherwise, if you just bring your mouse, hover around the top, you will see a dynamically menu. Store, And then you can click on chat, so you can see. Yeah. I clicked on chat. Once you share a screen, all these menu go in a dynamic mode. I understand that. Otherwise, Dr. Ritika is there. She will take care of that. Okay, yeah. ये सवाल क्या दोबारा से? अच्छा, एक सेकेंड। इवन हैंडेडनेस, ये किसी ने पूछा है। इवन हैंडेडनेस, यस सर। इवन हैंडेडनेस जो, मतलब मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, हम अपना एक नज़रिया, अपनी एक सोच, और एक पहले से एक प्रिजुडाइज्ड माइंड लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्केल है वो झुक जाता है। इवन हैंडेडनेस का मतलब है कि सबको बिल्कुल बराबरली हैंडल करना। नेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम अक्षरा, लीव माई प्रेजुडिसेस एट द डोर। इसका तो एक ही लाइन में बस सिंपल सा यही है कि आप जो भी सोचते हैं, मान लीजिए मैं
मुसलमान हूँ, हिंदुओं को लेकर के मेरी कोई विचारधारा है, या मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ, गे लोगों को समलैंगिकों को लेकर मेरी कोई विचारधारा है, या मैं एक वाइट पर्सन हूँ, मेरी ब्लैक्स को लेकर के कोई प्रेजुडिसेस हैं, वो है। तो ये सब जब मैं कहानी करने के लिए निकलूं तो इन्हें अपने घर के दरवाजे पे छोड़ जाऊं, ये मेरे साथ ना चले, बैगेज की तरह लटके नहीं। मैं एक खबर को हिंदू के नज़रिए से, मुसलमान के नज़रिए से, या मेरे जो अपने प्रेजुडिसेस हैं, हाँ हम में से हर किसी के होते हैं, उससे ना देखूं, उस दायरे से बाहर निकल के। हाँ प्राची, हमारा इंस्टिंक्ट कई बार गलत हो सकता है, बट अगर आप रिगर से और वही मैं कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ को जब आप क्वेश्चन करें, एक एक फैक्ट को जब आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। आपका फाइनल ड्राफ्ट जाने से पहले आप जहां गलत हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। सर कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट का हिंदी शब्द होता है संदर्भ, और इसका सीधा सा मसला यह है कि जो मैं स्टोरी कर रहा हूँ उसका कंटेक्स्ट लोगों को समझ में आए। मान लो मैं किसान आंदोलन पे स्टोरी कर रहा हूँ, या मैं सीए प्रोटेस्ट पे स्टोरी कर रहा हूँ, या मैं उदाहरण के तौर पे किसी ने किसी पे मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि मुझे जो है मेरे धर्म पहचान के आधार पर मारा है, तो मैं प्रॉपर कंटेक्स्ट अपने ऑडियंसेस को दूं, पूरा संदर्भ समझाऊं कि हाल के मतलब उनको इनको ये पता लगे कि चल क्या रहा है। ये स्टोरी स्टैंड आउट नहीं है, अचानक से नहीं आ गई है, ये हो रहा है और उसके सीक्वेंस में ये घटना हुई है। वो उसके जो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग मटेरियल हैं वो मैं लोगों को दे दूं। जैसे अभी आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत है, तो स्टोरी में जब मैं ये बता रहा हूँ कि 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हैं, किसान 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, किसान इसलिए बैठे, तो ये कंटेक्स्ट हो गया उस स्टोरी का, और उस संदर्भ में जो है अब ये यहाँ महापंचायत कर रहे हैं। सर ये एक सवाल है, क्या पत्रकार की लाइफ भी डेंजर में होती है? ऋषिता वर्मा ने पूछा है। ये सवाल प्राची ने भी पूछा है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर डूइंग। आमतौर पे मतलब मेरी ये राय है, मेरा ये मानना है कि अगर आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और अपनी एक नाम पहचान बना चुके हैं और आप एक अच्छे बड़े संस्थान के साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों की पहुंच से थोड़ा सा दूर होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। खतरा तो होता है, लेकिन उस खतरे के असेसमेंट को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि मैं बीबीसी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं मुरादाबाद में जाके एक स्टोरी करके दिल्ली आ जाता हूँ, तो मुरादाबाद में जो लोग उस स्टोरी से पिस्ड ऑफ हैं, वो अगर मुझे नुकसान पहुंचाना भी चाहें तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। खतरा हमेशा होता है, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्टोरी यू आर डूइंग। अगर आप कोई बहुत सीरियस करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोग जो उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं वो आपको अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने स्टेटस के लिए खतरा मान लेते हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में एक यंग जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई। वो आरटीआई एक्टिविस्ट था, और वो जो लोकल क्लिनिक्स होते हैं, जो अस्पताल होते हैं स्थानीय स्तर पर, उनके करप्शन को एक्सपोज कर रहा था, तो मारा गया, और उसमें उन लोगों के नाम आ रहे हैं। तो खतरा तो हमेशा रहता है, बट वो आपको हमेशा ना अपने, देखिए एक रिस्क असेसमेंट होता है, एक जर्नलिस्ट को हमेशा रिस्क का असेसमेंट करना चाहिए। और मेरी ट्रेनिंग ये कहती है कि आप जिंदा हैं तो कहानियां कह पाएंगे, तो योर लाइफ इज एटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है कि कोई खतरा, कोई कहानी करके अपनी आइडेंटिटी रिवील करके आपकी जान खतरे में आ सकती है, तो मेरा मानना है कि उस रिस्क को असेस करना चाहिए, और फिर भी आपको लगता है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर उस कहानी को इस तरीके से कहना चाहिए कि आप पर खतरा भी ना हो और वो कहानी भी कह दी जाए। So you will have to continue doing your risk assessment and evaluating your risk assessment. There will always be risk. Sir, a question regarding this topic. Uh-huh.
Sir, so like if we want to like expose something and the people are powerful, so can we become like an undercover journalist kind of thing? Being popular is not like नहीं, important as this is you have to decide depending on the story. The answer depends on the story. तो मैं स्टॉप शेयर करके आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं so थोड़ा like I meant नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ आपको। अंडर कवर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अलग से स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं दिलनवाज पाशा हूँ, मुझे कोई स्टोरी नज़र आई और मुझे लगे नहीं यार मुझे एक्सपोज करना है, फिर मुझे पता चला ख़तरा है, मैं अंडर कवर चला जाऊँ। नहीं, मैं जाऊँगा अंडर कवर, लेकिन मुझे उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर स्किल सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाँ, हम करते हैं ऐसी स्टोरियाँ जिसमें हमें अंडर कवर जाना होता है, और बहुत से जर्नलिस्ट करते हैं, जाना ही पड़ता है। कई बार स्टोरी की डिमांड होती है, क्योंकि सामने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उनको ज़रा भी आभास हो तो दे कैन हार्म यू। इट हैपेंस, इट ऑलवेज हैपेंस। आजकल इंडिया में जो है अंडर कवर जर्नलिज्म कम हो गया है, बट दिस हैपेंस। so like are there undercover specialized undercover journalists in India, so like they I cannot do give the you job. names, but there are some working for us as well. Okay sir. There are. Sir, And I'm sure- Objectivity. Very good question. Objectivity means to be objective about something. Objective, आपको पता है आपको क्या क्या तलाशना है। आप जब खबर करने जा रहे हो आपको पता हो कि आपको क्या क्या तथ्य निकालने हैं। यू आर ऑब्जेक्टिव अबाउट योर स्टोरी। बहुत सिंपल है, सरल है, यही है। खबर कुछ हो रहा है, कहीं और में भटके हैं। अब अगर एक बच्चे ने पूछा है, हाउ डू यू एंश्योर योर वर्क इज एक्यूरेट, एंड द नेम इज मेहर, एंड आई थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ डू यू एंश्योर योर वर्क इज एक्यूरेट? To continuously challenging yourself, to ask the right questions, to do the factual rigor, to get immersed in the story. गलतियां सबसे होती हैं और हमसे भी हुई होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शार्प हो जाएं, थोड़ी सी और मेहनत करें और कंटिन्यूसली अपने आप को चैलेंज करते रहें, ये ना मान बैठे कि मैं कर रहा हूं तो सही ही होगा। नहीं, देखो जर्नलिज्म के बेसिक हमेशा वही रहेंगे। आपको अपनी स्टोरी में इस्तेमाल हर प्रॉपर नाउन को वेरीफाई करना है। नाम क्या है, नाम सही है या नहीं है, और ये हमेशा हर रिपोर्ट के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 500 खबरें कर ली हैं तो 501 भी में गलती मुझसे नहीं होगी। जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ वो सही है, जिस जगह का मैं नाम लिख रहा हूँ वो सही है, जिस बंदे को मैं कोट कर रहा हूँ उसकी डेजिग्नेशन सही है, जो समय मैं दे रहा हूँ वो सही है। तो जब आप कंटिन्यूसली ये सवाल पूछते रहेंगे और हर स्टोरी को जब आप लिखने के बाद वेरीफाई आर ऑल द प्रॉपर नाउन्स, जो उसमें जितने भी नाम चीज़ों के मैंने इस्तेमाल करे हैं क्या वो सही है, जो फैक्ट्स हैं वो सही हैं, तो आप जो है इंश्योर कर पाएंगे कि आप एक्यूरेट हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके इस डिस्कशन के बाद, चूंकि समय बहुत कम है, और अगली स्लाइड आपको दिखा दूँ, और मुझे पता नहीं कैसे खुलेगा। यहाँ से शायद था, स्लाइड ओपन करनी है और शेयर, वापस से शेयर। हाँ, मैं बस वही कर रहा हूँ। मुझे बस स्लाइड पे जाके, एक्चुअली आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। I see. I see. ये This is a very good platform. We have purchased this official platform. And one-to-one discussion is very good in this WebEx. Yeah, it is coming. It's coming. तो मैं बस ये इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। हाँ, क्लिक करके मैंने, अब मैं शायद कहीं और आ गया हूँ। 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। Impartial PPTX दिख रहा मुझे। हाँ, नहीं, मैं उसी को खोल रहा हूँ। तो इसका ये It has come. It has come. Yes.
तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन अभी शायद हाँ, स्क्रीन आ रही है। आ रही है। हाँ, हाँ, Yes, sir. तो उस वर्ड क्लाउड से आप ये ले लीजिए, आप खबर में एक्यूरेसी मेंटेन करिए। जो सवाल मुझसे पूछा था और बहुत अच्छा सवाल पूछा था, मेक श्योर दैट यू आर एक्यूरेट एविडेंस। अगर आप कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं तो उसका एविडेंस पेश कीजिए। फैक्ट आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और जजमेंट एज अ रिपोर्टर आप ले रहे हैं, आप तय करते हैं ना चीज़ें, इसने इसको पीटा या नहीं पीटा, दैट इज द जजमेंट यू आर मेकिंग एंड दैट इज व्हाट यू आर पुटिंग इन योर रिपोर्ट। तो वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। द जजमेंट्स यू आर मेकिंग एंड यू आर पासिंग ऑन, दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, आई मीन दे मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, एविडेंसी एंड एक्यूरेसी। ये बात सबकी समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. इसको आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कहीं। जो जितना मैंने बताया उस सब का निचोड़ यही है। और ये आप अपने करियर के दौरान बार बार ये शब्द आपके सामने आते रहेंगे। आप बूढ़े हो जाएंगे, पत्रकारिता करते करते संपादक बन जाएंगे, तब भी ये शब्द आपको चैलेंज करते रहेंगे। आपको बस यही इंश्योर करना है अपनी रिपोर्ट। इतना आप कर ले रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पर निभा लें। अब मैं अगली स्लाइड पे बढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है खत्म। Sir, what was that? Informed and the last word I... इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स। एक रिपोर्टर के तौर पर आप अपनी खबर में कई चीजें ऐसी देते हैं जो आपको पता चला होता और आप दे देते थे। तो वो जो जजमेंट आप पास कर रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत कम समय में दूंगा। सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों ने एक मार के लटका दिया था। अब अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये वाक्य लिख रहा हूं, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की संदिग्ध लाश मिली है, उसकी हत्या का आरोप निहंग सिखों पर है, तो मैं ये जानकारी अगर मेरी रिपोर्ट में जा रही है और मैं लिख रहा हूं उनकी हत्या का आरोप निहंग सिखों पर है, तो जजमेंट जो मैं पास कर रहा हूं अपनी स्टोरी में, ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्म्ड फैक्ट्स होना चाहिए। मतलब मेरे पास इससे जुड़ी सारी जानकारियां होनी चाहिए, तब मुझे लिखना चाहिए। पुलिस को शक है कि उसको उन्होंने मारा है, किसी निहंग ने स्वीकार कर लिया है, या मरने वाले के परिजनों ने आरोप लगाया। मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही नहीं लिख दिया है कि आरोप उन पर है। आप समझे मेरी बात? Yes, sir. अब हम अगले इस पे आ रहे हैं। इसका आपको जवाब नहीं देना है, इस सवाल का। आपको अपनी डायरी में कहीं 2 कॉलम बनाने हैं। आपकी नज़र में आज के दौर में कौन निष्पक्ष है और कौन आपको लगता है निष्पक्ष नहीं है, उनके नाम लिखने हैं दोनों तरफ। और अगले 10-15 दिन तक उनके जर्नलिज्म को आपको देखना है, किसी भी एक को, जिसको आप निष्पक्ष समझते हैं, जिसको आप नहीं समझते हैं, और उसको फिर जो मैंने आपको बताया है उसकी रोशनी में एनालाइज करना है। तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि निष्पक्षता क्या है। आपको रिपोर्ट पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये बंदा जो इस रिपोर्ट को कर रहा है निष्पक्ष है या नहीं। एक पाठक के तौर पे जब आप ये पहचानना सीख लेंगे कि कौन सी खबर निष्पक्षता से की गई है और कौन सी नहीं, तो एक पत्रकार के तौर पे आप बेहतर तरीके से इम्पार्शियलिटी को अपनी प्रैक्टिस में ला पाएंगे। बस 2 छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब पे आएंगे क्योंकि समय खत्म हो गया। लास्ट स्क्रीन है, ये दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? Yes, जी sir. बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये एक हिंदी अखबार की हेडलाइन है। इसको पढ़ के आपको क्या ख्याल आता है? कोई बोलना चाहेगा, कोई चैट में लिखना चाहेगा? ये क्या हुआ? Screen black हो अच्छा, Sir, chaos in Lakhimpur, 8 dead. Farmer chaos. किसान लिखा है ना।
सर बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है इसमें, जैसे दुर्घटना दी गई है अगर आप देखें, और जो सब हेड है वो बहुत डायरेक्टली दी गई है कि मतलब एक तरह से उनको अक्यूज कर दिया गया है बहुत। एक्यूज नहीं, क्लीन चिट दे दी गई। एक तरफ बता रहा हाँ है कि सर, फार्मर्स को किसान से दे मौत दिया हुई पूरा। है, और दूसरी तरफ बता रहा है कि उपद्रव की वजह से मौत हुई है। सर बहुत बिल्कुल बोल्ड इससे लेटर्स में क्लियरली लिख दिया है कि लाइक इट वाज लाइक फार्मर का उपद्रव, किसानों का उपद्रव, बहुत और बहुत दुर्घटना। छोटी लाइनों में लिखा है कि दुर्घटना में 4 किसान और 4 भाजपा के। सो लाइक पीपल रीड the big bold lines and some people make opinions on these lines also. इस खबर को पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या ये निष्पक्ष खबर है या किसी एक पक्ष को विक्टिम की तरह, एक को एग्रेसर की तरह पेश कर रही है, या इसमें तथ्य को छुपाने की कोशिश की गई है? सर इसमें Partiality है। कुछ तो तथ्य छुपाए गए हैं, क्योंकि कि मेन भाजपा को ऊपर देखी जाए तो किसानों का उपद्रव, और उसके बाद कहा जा रहा है भाजपा नेता की कार से हुई दुर्घटना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य तो इसमें छुपाया जा रहा है। मैम कॉन्ट्रडिक्टरी Sir, स्टेटमेंट moreover, है they're दोनों की दोनों। pointing over BJP. बिल्कुल। targeting. यस सर, इसमें सर बीजेपी को छुपाया जा रहा है। हाँ ये सर बीजेपी को मारना बचाने एक बंदे को पहले किसान मारने चले थे, अनिल नाम का, तो गलती से वो बचने के लिए किसानों के ऊपर से गाड़ी चढ़ी थी, तब जाके किसानों ने ऐसे मारा है। पहले थी Sir, किसान they are being impartial towards अरे BJP. सर सिर्फ न्यूज का पूछ रहे हैं, व्यूज नहीं पूछ रहे हमारे। इस खबर से जो पढ़ के पहला जो रीडर है, जिसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जो आपकी तरह हमारी तरह एनलाइटन नहीं है, उसके मन में पहला विचार ये आएगा कि किसान उपद्रव कर रहे थे, उसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। यानी कहीं ना कहीं किसानों को पे पूरी घटना की जिम्मेदारी डाल दी गई है। दूसरा, दुर्घटना बता दिया गया है उसको, यानी जो हुआ वो दुर्घटनावश हुआ, तो जो क्रिमिनल इंटेंट है वो नहीं था। लेकिन अभी जांच में हमें जो तथ्य पता चल रहे हैं वो बिल्कुल इसके अलग हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो हम इस तरीके की जो बहुत ही संवेदनशील घटना हो, उसमें निष्पक्ष कैसे रहें? वो तभी रह पाएंगे जब हम इम्पार्शियल, हम ये तय कर लेंगे कि हमको बिल्कुल इम्पार्शियल होकर खबर लिखनी है, तो फिर हम पूरे फैक्ट्स लिखेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जजमेंट पास नहीं करेंगे। हम इसका क्या बेहतर शीर्षक हो सकता था इससे? ये आप सोचिएगा। समय समाप्त हो गया है और मैं हुदा साहब से अब जो है इजाजत चाहूंगा। किसी का एक आध सवाल है? एक क्वेश्चन काफी बार लिखा गया एक बच्चे का है कि इफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर और बिग पर्सनालिटी इज फोर्सिंग नॉट टू से द फैक्ट व्हिच आई नो एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, एज ए जर्नलिस्ट, एंड व्हाट इफ they are also giving threat, so how to deal with this situation? This is connected to the same news which you have been showing, huh? नहीं, देखिए, ये तो डिसीजन आपको लेना है कि आप सच को कहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं वो उस प्रेशर को विदहोल्ड कर सकता है? क्या वो सच इतना ज़रूरी है कि आना चाहिए? मैं अगर बीबीसी में काम करता हूँ और मैं कह दूं कि हाँ मेरा संस्थान कर सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं मैं बाकी जर्नलिस्टों पर सवाल उठा दूं जो हजारों पत्रकार दूसरे संस्थानों में काम कर रहे हैं, जिन पे हो सकता है कि कई तरीके के प्रेशर हो। अगर आप कन्विंस्ड हैं और आपको लगता है कि कहानी आनी ही चाहिए, तो जिस मोमेंट आप ये डिसीजन लेंगे कि कहानी आनी ही चाहिए और आप रिस्क का असेसमेंट कर लेंगे, आप यकीन करें आपको उसको कहने का रास्ता भी मिल जाएगा। वो डिसीजन कंप्लीटली अपने आप को लेना है। और ऐसा होता है, मैं नहीं कह, बहुत से पत्रकारों के साथ ऐसा होता है। वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर रख पाते क्योंकि जिस संस्थान में वो काम करते हैं उस पर कई तरीके के दबाव होते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहूँगा कि अगर वो पत्रकार उस दबाव से मुक्त होना चाहे तो वो हो सकता है।
उसके रास्ते रास्ते हमेशा हैं, और आप आगे जब फील्ड में आएंगे तो आपको वो रास्ते दिख जाएंगे। ये सर तो मेरा एक सवाल है। जी गुड इवनिंग सर, मेरा नाम यश है, मैं मास कम्युनिकेशन का फैकल्टी हूँ। मेरे को ये पता करना था कि सर जैसे हम मास कॉम पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारा बेसिक होता है वो ABCD आती है, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी, डिसर्नमेंट, जो हम बेसिक सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं। हाँ सर डू यू रियली थिंक सो ऑल दीज ABCD आर फिट फॉर द मीडिया ट्रायल ऑल्सो, या उसमें कुछ इम्पार्शियलिटी भी होती है? नहीं, मीडिया को ट्रायल तो करना ही नहीं चाहिए। ट्रायल करना मीडिया का काम नहीं है। मीडिया कर रहा है, गलत कर रहा है। मीडिया का काम होता है तथ्यों को, फैक्ट्स को, घटनाओं को, सच को मंजर आम पे लाना, लोगों के सामने लाना। इसके अलावा मीडिया का कोई काम नहीं होता है। वो एडिशनल जिम्मेदारी मीडिया ने ले ली है अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हुए। ऐसा नहीं है, मीडिया का सिर्फ ये काम है जो हुआ है, जैसे हुआ है वैसे बता देना। मीडिया ट्रायल तो मीडिया का काम ही नहीं है ना, जज का काम होता है ट्रायल करना। अब कोई पत्रकार जज बना हुआ है तो मैं उस पर क्या ही कमेंट करूं। राइट, थैंक यू सो मच सर। So thank you so much, Mr. Dilnawaz. बहुत से बच्चों के Very- सवाल रह गए होंगे सर, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। I can understand your time constraint. मुझे वक्त पे ये खत्म करना है सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। जी जी, इट हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल सेशन, बहुत यूजफुल सेशन। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी क्यूरियोसिटी जो बच्चों की थी वो एड्रेस हो गई। और मैं इस नोट पे इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि तकरीबन 35 years ago, being college student, I used to write columns for different newspapers and then I wrote कि पत्रकारिता में हमें एज ए पत्रकार क्या करना चाहिए। 2 पंक्तियाँ लिखी थी कि न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। न तो राइट की तरफ जाते हैं, न हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमें तो आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। यही काम पत्रकार को करना चाहिए। और यही आज के इस इम्पार्शियल जर्नलिज्म पे जो आपने इतनी देर तक और इनलाइटन एक किया, घंटे में सर अपने इस एक्सपीरियंस को सब्जेक्ट शेयर। को समेटना आसान नहीं है, बहुत सारी बातें रह गई हैं। जी, तो मैं बच्चों से कहूंगा बस एक ही शब्द याद रखें, इम्पार्शियलिटी, और इसको परस्यू करें, बाकी सब चीजें आपको अपने आप पता चल जाएंगी। अपने आप आएंगे। And would like to have many more sessions from you in coming days. Every Saturday we have activity day. Let's see that when you are free and how can we tap you and request you to interact with the students. Thank you so much, Mr. Sir, now I Dilnawaz, for request you to take the having us. lead. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much, Dilnawaz Pasha sir, and thank you all the students for making possible such an interactive session. It's already 4:02 and you all now have your interaction session with your seniors lined up. So all the students might be getting links for their separate WhatsApp group channel. So the students, you can start joining your separate WhatsApp group channels. I hope everybody has started getting the link. So, dear students, kindly leave this meeting room and start joining your WhatsApp group channel. We'll again meet on this link tomorrow morning at 9 a.m. You can leave. Thank you, dear. Join your WhatsApp groups.